ایک بات جو ہم سب ابلیس کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ نسل انسان پر طرح طرح کی حملے کرتا رہتا ہے۔ ابلیس کسی کی حیثیت کی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ پرواہ نہیں کرتا کہ آپ مسیحی ہیں یا نہیں، وہ پرواہ نہیں کرتا کہ آپ امیر ہیں یا غریب، وہ پرواہ نہیں کرتا کہ آپ پڑھے لکھے ہیں یا ان پڑھ۔ وہ بس نسل انسان کو برباد دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ مختلف ذرائع سے انسان پر حملے کرتا ہے۔ یہ سن کر آپ حیران ہوں گے کہ ابلیس آپ پر حملہ کرنے کے لیے آپ کے آس پاس لوگوں کو بھی استعمال کر سکتا ہے۔ وہ مختلف سوچوں کے ذریعے آپ پر حملہ کرتا ہے۔ وہ آپ پر حملہ کرنے کے لیے آپ کے موجودہ حالات کا سہارا لیتا ہے۔ جو کچھ بھی اسے دستیاب ہے وہ اسے ہمیشہ آپ کے خلاف استعمال کرے گا۔ وہ کسی کو معاف نہیں کرتا۔ وہ چور ہے جو آپ کی برکت کو چراتا ہے۔ وہ خونی ہے جو ہمیشہ کے لیے آپ کی روح کو جہنم میں لے کر جانے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ لیکن ایک گروہ ایسا ہے جو سر فہرست ہے، اور وہ گروہ ہے مسیحیوں کا، جو وفاداری اور ایمانداری سے خدا کے کلام اور خوف میں چلتے ہیں، جن سے وہ سب سے زیادہ نفرت کرتا ہے۔ شیطان ان لوگوں کو کبھی آرام نہیں کرنے دے گا۔ وہ ہر ایک حربہ اور ہر ایک راستہ اپناتا ہے کہ ایمانداروں کو گرا دے۔ کلام اقدس ہمیں متحد رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ آپ کو روحانی اعتبار سے جاگتے رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اس خاص وقت کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے جب وہ آپ پر حملہ کرے گا۔ بائبل ہمیں سکھانا چاہتی ہے کہ ہمیں ہر وقت ان 5 کنواریوں کی طرح تیار رہنا ہے جن کی مشلیں جل رہی تھیں، جو دلہا کے انتظار میں جاگتی تھی۔ ایوب کی کتاب اس کے پہلے باب میں لکھا ہے، اور ایک دن خدا کے بیٹے آئے کہ خداوند کے حضور حاضر ہوں، اور ان کے درمیان شیطان بھی آیا، اور خداوند نے اس سے پوچھا کہ تو کہاں سے آتا ہے؟ شیطان نے جواب دیا کہ زمین پر ادھر ادھر گھومتا پھرتا اور اس میں سیر کرتا ہوا آیا ہوں۔ ہم آرام کرتے ہیں اور سو جاتے ہیں، لیکن ابلیس گھومتا پھرتا رہتا ہے۔ وہ آرام نہیں کرتا۔ وہ صحیح وقت کا انتظار کرتا ہے جب ایماندار کوئی دروازہ کھلا چھوڑے اور وہ چھپکے سے گھس آئے اور اسے نقصان پہنچا سکے۔ اگر ہم آگے پڑھیں تو لکھا ہے، خداوند نے شیطان سے کہا، کیا تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا ہے؟ کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل اور راست باز، جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہو، کوئی نہیں۔ شیطان نے خداوند کو جواب دیا کہ کیا ایوب یوں ہی خدا سے ڈرتا ہے؟ کیا تو نے اس کے اور اس کے گھر کے گرد اور جو کچھ اس کا ہے، اس سب کے گرد چاروں طرف باڑ نہیں لگا رکھی؟ تو نے اس کے ہاتھ کے کام میں برکت بخشی ہے اور اس کے گلے بھرے رہتے ہیں۔ غور کیجئے گا، ابلیس ایمانداروں کو بہت تفصیل سے جانتا ہے۔ وہ ان کی ترقی اور کامیابی اور اسی طرح ان کی سب کمیاں اور خامیاں بھی جانتا ہے، جن سے وہ انہیں گرانے کے لیے منصوبہ تیار رکھتا ہے۔ خداوند جانتا تھا کہ ابلیس ایسے ہی نہیں آیا۔ وہ چاہتا تھا کہ خدا اس باڑ کو ہٹائے جو اس نے ایوب کے گرد لگا رکھی ہے، اور میں ایوب کو گراؤں۔ اور اگر ہم کلام مقدس کا مطالعہ کریں تو لکھا ہے کہ ابلیس نے ایوب کو ایمان سے ہٹانے کے لیے اس کے سب سے قریبی، اس کی بیوی کا استعمال کیا۔ لیکن خداوند اپنے بندہ ایوب کو جانتا تھا، اور خدا نے بہت فخر سے اسے کہا کہ کیا تو میرے بندہ ایوب کو جانتا ہے؟ اس کے جیسا راست باز اور میرا خوف ماننے والا پوری زمین پر نہیں۔ آپ شاید یہی سوچتے ہیں کہ میں اپنی قوت اور طاقت سے، اپنی عقل اور فہم سے ابلیس سے لڑ سکتا ہوں۔ But there is no one in this world، کوئی بھی ایک ایسا دنیا میں نہیں جو ابلیس سے اپنی قوت سے لڑ سکے، کیونکہ یہ لڑائی جسم کی نہیں بلکہ روح کی ہے۔ لیکن اگر ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ گہرا ہے، ہم ہر روز اس کی مرضی کو بجا لاتے ہیں اور ہم پہلے پھلوں سے اس کی تمجید اور ستائش کرتے ہیں، تو ہم بڑی دلیری کے ساتھ بول سکتے ہیں، خداوند میرا چھپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک خداوند سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ تب آپ دشمن کو بتا سکتے ہیں کہ وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے، وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے، وہی مجھے سیاد کے پھندے اور مہلک وبا سے چھڑائے گا۔ وہ مجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا اور مجھے اس کے بازوں کے نیچے پناہ ملے گی۔ تب میں نہ رات کی ہیبت سے ڈروں گا، نہ دن میں اڑنے والے تیر سے، نہ اس ہلاکت سے جو دوپہر کو ویران کرتی ہے۔ میرے آس پاس 1000 اور دائیں ہاتھ کی طرف 10,000 گر جائیں گے،
लेकिन वो मेरे करीब ना आएगी। हालेलुया। आप ये जानकर हैरान होंगे कि हमारे चारों तरफ एक रूहानी आलम है जहाँ हर वक्त जंग का समा रहता है। खुदावन के फरिश्ते और इब्लीसी कुव्वतों में हर वक्त कहीं न कहीं जंग बरपा रहती है। लेकिन एक बात जानकर आपको खुशी होगी कि इस जंग में खुदा आपकी तरफ है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जंग मेरे और आपके लिए है और हम इस जंग के सबसे अहम पहलू हैं। जब हम दुआ करते हैं, कलाम मुक़द्दस की ताबेदारी करते हैं और अपने आसमानी बाप की मर्ज़ी को बजा लाते हैं तो खुदा के फरिश्ते गालिब आते हैं। और जैसे ही हम कमज़ोर और सुस्त और गुनाह में गिरते हैं तो खुदावन के फरिश्ते लड़ाई रोक देते हैं और इब्लीस के लिए दरवाज़ा खुल जाता है कि वो हमें तरह तरह की अज़ियतें दे। हमारा दुश्मन हमारा इंतज़ार करता है कि हम कोई गलती या ख़ता करें और वो हमें बर्बाद करें। इस दुनिया में ऐसे बहुत से इंसान हैं जो इन सब बातों को नहीं मानते और उनके बारे में लिखा है कि वो देखते हुए ना देखेंगे और सुनते हुए ना सुनेंगे, क्योंकि इस जहान के खुदा ने उनकी अक्लों पर पर्दा डाल रखा है। वो नहीं चाहता कि आप सच्चाई से वाकिफ हों। इफिसियों 6:12 में यूँ लिखा है, हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया के तरीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में हैं। ये गवाही है उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि वो नशे की लत से बाहर नहीं निकल सकते। एक नशाबाज था, उसने चर्च जाना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता वो नशे की लत से बाहर आना शुरू हो गया और जैसे जैसे वो कलाम सुनता और अमल करता उसकी जिंदगी तब्दील होना शुरू हो गई। एक दिन उसने फैसला किया कि अब वो बड़ी सच्चाई से खुदावन के साथ चलेगा। उसने तौबा की और बपतिस्मा लिया और नए सिरे से जिंदगी गुजारना शुरू की। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि उसी दिन उसका पुराना दोस्त जो नशा करता था, उसने उसको मजबूर किया कि वो फिर से नशा करे और वापस उसी जिंदगी में लौट जाए। आप शायद इसे इत्तेफाक समझे, पर हकीकत में ये दुश्मन का प्लान था। वो हर मुमकिन कोशिश करता है कि वो ईमानदार को गिरा सके। खुदा के कलाम में लिखा है कि बुरी सोहबत अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। आप अक्सर ये सोचते हैं कि जब कभी आपका कोई एक्सीडेंट होता या आप किसी बड़ी मुश्किल में फंस जाते हैं तो ये सिर्फ महज इत्तेफाक है। बट यू नीड टू वेक अप, डेविल इज हंटिंग फॉर यू। वो आपका शिकार कर रहा है, वो हर रोज आपका पीछा करता है। बट ग्लोरी बी टू गॉड, ही सेव्स अस। वो फिर से एक और मौका दे रहा है। वो हमें बुला रहा है कि बेटे वापस आ जा। ये वही वक्त है जब हमें शैतान को बोलना है, नो, नो मीन्स नो, आई विल ओबे माई लॉर्ड फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। आप उस ईमानदार की तरह जिसने दोबारा नशा करने से मना कर दिया था, इब्लीस को ना बोलना है। आप खुदा के कलाम को सामने रखते हुए कह सकते हैं, ऐ शैतान दूर हो। लिखा है कि सिर्फ खुदावंद अपने खुदा ही को सजदा कर और उसी की इबादत कर। आप उसको दुआ के जरिए नो बोल सकते हैं। आप खुदा से मदद मांग सकते हैं, फादर आई कम टू यू इन जीसस क्राइस्ट नेम। ऐ बाप, मैं यीशु नासरी के नाम से आपके पास आता हूँ। मैं अपने ज़हन को आपके बेटे हमारे प्यारे खुदावंद यीशु नासरी के खून में छुपाता हूँ और खुदावंद यीशु मसीह के नाम में सारी मनफी सोचों को बांध देता हूँ, क्योंकि आपके कलाम में लिखा है, जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे आसमान पर बन जाएगा और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे आसमान पर खुल जाएगा। ऐ बाप, मेरे दिल को पाक कर और वो सब बुरी ख्वाहिशात जो दुश्मन की तरफ से हैं, यीशु मसीह के नाम से उनका वजूद मेरी जिंदगी से जाता रहे। ऐ बाप, मैं आपका हकीकी बेटा बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मैं खुद को आपके सुपुर्द करता या करती हूँ। जब आप सच्चाई के साथ ऐसे बोलेंगे तो फरिश्ते हरकत में आ जाएंगे, और कौन है जिसकी जुर्रत है कि वो आपको खुदा के हाथ से छुड़ा कर ले जाए? यकीनन कोई नहीं, क्योंकि इस दुनिया का खालिक और मालिक हमारा बाप है। कौन है जो उसके सामने ठहर सके? कोई नहीं। बाज़-औक़ात दुश्मन हमारे कान में चुपके से आकर कहता है, ये बुरी आदत छोड़ना मुश्किल है, इंसान होते हुए तू कमज़ोर है, ये नशे की लत जिसको लग जाती है वो इसके बिना नहीं रह सकता, इन बदकारी की सोचों से तू बाहर नहीं आ सकता, ये हर इंसान का मसला है, बस तू ऐसे ही जिंदगी गुजार क्योंकि ये तेरे बस की बात नहीं। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये झूठ है, वो झूठा है और वो झूठों का बाप है। पहला कुरिन्थियों 10:13 में लिखा है, तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो। वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज्यादा आजमाइश में ना पड़ने देगा, बल्कि आजमाइश के साथ निकलने की राह भी पैदा कर देगा। कलाम अक़दस में लिखा है कि खुदा के साथ सब चीजें मुमकिन है। वो जहाँ पर नहीं बोता वहाँ से काटता है और वो वहाँ से इकट्ठा करता है जहाँ नहीं बिखेरता, बशर्ते कि
हम हर बात के लिए उसी पर तवक्कल करना सीख जाएं तो वो हर तूफान से निकलने के लिए रास्ता बना देगा। ही इज द मास्टर ऑफ इम्पॉसिबल। खुदा कभी भी आपको किसी ऐसी मुश्किल में नहीं पड़ने देगा जो आपकी बर्दाश्त से बाहर हो। अगर आप मुसीबत में फंस भी जाएं तो वो रास्ता बना देगा ताकि आप लड़ना सीख जाएं, आप मजबूत हो जाएं, आप फतह हासिल करने का राज समझ सकें। खुदा हमेशा हमारे सामने चॉइसेस रखता है और उसने हमेशा से इंसान को चूज करने का मौका दिया है। ये फैसला आपका है कि आप लड़ाई करके जिंदगी की जंग जीतना चाहते हैं या फिर हाथ ऊपर कर खुद को दुश्मन के हवाले करना चाहते हैं। अगर आप लड़ना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, गॉड इज ऑन योर साइड। खुदा आपकी तरफ है। आप जैसे ही अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद करके लड़ना शुरू करेंगे, हाथ तो हमारे उठेंगे लेकिन हमारी जगह कोई और लड़ेगा। फोन तो हमारे इस्तेमाल होंगे लेकिन आग आसमान से नाजिल होगी। कलामे अक़दस में लिखा है कि अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है, कौन हमारे सामने ठहर सकता है? यकीनन कोई नहीं। हमें दुश्मन के झूठ से बचना है और कलामे हक को पढ़ना है और इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है ताकि हम दुश्मन के हर वार को नाकाम बना सके। लूका की इंजील में लिखा है, फिर यीशु रूह कुद्स से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक रूह की हदायत से बियाबान में फिरता रहा और इब्लीस उसे आजमाता रहा। कुछ मसीही सोचते हैं कि जब हम तौबा करते और बपतिस्मा लेते हैं तो इब्लीस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन आपको अकल और रूह के साथ चलना है। यही वो वक्त होगा जब आप आजमाए जाएंगे कि आप खुदा के साथ कितने वफादार हैं। क्या आपने उन सब चीज़ों को तर्क कर दिया है जो खुदा के हुजूर नापसंदीदा हैं? क्या आपने वो पुराना रवैया बदल दिया है? क्या आपने बर्दाश्त करना सीख लिया है? क्या आपने लोगों को माफ करना सीख लिया है? क्या आपने रूठे हुओं को मनाया है? क्या आपने वो सोबत छोड़ दी है जिससे खुदा को नफरत है? क्या हम अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखते हैं जैसा खुदा ने हमसे कहा? क्या हम खुदा से वैसी मोहब्बत करते हैं जैसी मोहब्बत का वो हमसे मुतालबा करता है? ये वो सवालात हैं जो हमें खुद से पूछने हैं। खुदा चाहता है कि आप हमेशा उसके करीब रहें। उसके करीब रहने के लिए हमें उसके साथ वक्त गुजारना होगा, उसके साथ अपने ताल्लुक़ को बेहतर बनाना होगा और उसकी मर्ज़ी को पूरा करना होगा। तभी आप एक कामयाब मसीही ज़िंदगी का तसव्वुर कर सकते हैं। खुदा आपके साथ हो और खुदा हमेशा इस्राएल को बरकत पर बरकत दे। आमीन।